Good evening, everyone. Good evening. Welcome back to StudyNest IS. And today we are going to study the approaches to study classics or how to study classics. But before we move ahead in the topic, we will have a quick recap of what we studied in the last class. So we had started with Western political thought. And let's understand why we started with Western political thought. We started with Western political thought because Western political thought is the foundation of the subject called political science. And why it is called as the foundation of the subject called political science? Because it gives the language of the subject. Western political thought gives us the language of the subject called political science, which forms the foundation of the subject. And that is why we start with Western political thought. And why the language is required? Because language is the medium of expression. So if we have to talk about the political science, we need the language. Every subject has its own language. Geography has its own language. Economy has its own language. इकोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? हम जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं, जीएनपी के बारे में पढ़ते हैं, बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं. सो दीज थिंग्स फॉर्म द language of the subject called economics. Likewise, Western political thought, which is considered to be the foundation of the subject called political science, provides us with the language of the subject called political science. Got that? So, why do we need the language? Let's get it clear right here. Why do we need the language? Language is the medium to express our thoughts, feelings, etc. In the same way, we need the language of the political science to express the political terms and terminologies. So, Western political thought gives us the foundation of the subject called political science, and it gives us the language. Language has terms and terminologies. Like when we study political science, we come across with the terms like realism, liberalism, communism, Marxism, feminism, fascism, etc. We come across the terms like liberty, equality, polity, etc. So these terms and terminologies form the language of the subject, or the foundation of the subject is political thought. That is why we start our study with political thought. So, where do we get the terms and terminologies? The basis of the terms and terminologies are in the concepts. The basis of the terms and terminologies are in the concepts. So,
What do we study in political thought? In political thought, we study the terms, terminologies, and the concepts. Did you get it? And that is why we start the study of the subject called political science with Western political thought. Now, let us understand the meaning of each and every term separately. So, what do we mean by the term political? Political का क्या मतलब होता है? Can you define political? So, political, or what do we mean by politics? We come across politics in our day-to-day life. You read about the politics in newspaper. You listen the term called politics or political in the news that you listen to. So the term political is a day-to-day term which we come across in our day-to-day life. The term political comes from the Greek word called polis. Don't get confused with the spelling. This spelling is correct. In Greek, it was polis, from where the term police, polis, has been derived. So there is no need to be confused. Looking at the etymological origin of the term political, the word political comes from the term polis, which means city estate, which means city estate. Like we have nation state today, we live in the entity called nation state. The whole world is divided into nation state. In ancient Greece is considered to be the cradle of the Western civilization. Cradle का मतलब समझते हो क्या होता है? बर्थ प्लेस. क्रैडल मीन्स बर्थ प्लेस, पालना भी कह सकते हैं. ठीक है. सो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्रैडल कहां था? ग्रीस में. सो हम जितने भी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज देखेंगे आने वाले समय में पॉलिटिकल साइंस में, इसकी शुरुआत कहां से होती है? ग्रीस से. राइट. सो वी कैन ऑल्सो से दैट Western political thought starts with Greek political thought or Greco-Roman political thought, which later gets developed into Western political thought. There is a scholar whose name is Edward Said. He coined the term Eurocentric. And what do we mean by the term Eurocentrism? Something which got originated into Europe, right? Something which originated in Europe is known as Eurocentric. So, whatever terms and terminologies or the language or the concepts that we study in political science through political thought comes from the Western world, right? Comes from the Western world, which is based on the history or experiences of the people of Europe. The people of Europe. That is why it is called Western political thought. So the political thought which comes from the western part of the world, which is Eurocentric, that means the center of these political thought is in Europe. It is based on their experiences, it is based on their history. That is why we call it Western or Euro
centric. Did you get it? Yes. Now we have understood the term political. The etymological origin of the term political is in the word polis, which means city, state. City state used to be the formation. City state used to be the formation, a kind of entity, a kind of a state. तो हम सिटी को भूल जाते हैं. लाइक इंडिया में क्या है? इंडिया में विलेज अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी है. विलेज में आदमी रहता है और इनफैक्ट ये अपने आप में पूर्ण होता है. आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो विलेज से आपको मिल जाता है, खाने पीने की चीजें, ठीक है, या जीवन यापन के लिए जो भी चीज चाहिए होता है वो आपको एक विलेज में मिल जाता है. सो इन इंडिया वी हैव विलेज रिपब्लिक्स. वी यूज्ड टू हैव विलेज रिपब्लिक्स, वी कैन से दैट. लाइकवाइज इन यूरोप, इन ग्रीस, वी यूज्ड टू हैव सिटी स्टेट्स. वहां सिटी स्टेट्स हुआ करते थे. तो सिटी स्टेट यूज्ड टू बी द पॉलिटिकल एंटिटी. सिटी स्टेट जो पॉलिटिकल एंटिटी हुआ करता था, उसी तरीके से आज के डेट में हम देखते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड वी हैव नेशन स्टेट. वी हैव नेशन स्टेट. बट टुडे आवर topic is not nation state. We have used this term to understand the meaning of the term state. Why do we study state? So what is political science? So there is a scholar called Garner. Garner said that the study of political science begins and ends with state. Garner said that the study of political science begins and ends with state. That means political science में हम state के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है. So anything and everything which is related to a state is political. Now did you get the meaning of the term? Anything or anything pertaining to a state is political. ये समझ में आ रहा है? और thought क्या है? What do we mean by thought here? Right. The thought which is related to state, or we can say that political thought is the thought related to a state. In one line we can say that political thought is nothing but the thought related to a state, politics, right? So why do we study political thought? Political thought क्यों पढ़ते हैं? Because it forms the foundation of the subject called political science. Come again. Why do we study political thought? Because it gives the foundation. हम बिल्डिंग बनाते हैं ना. बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा टाइम किस चीज में लगता है? उसके फाउंडेशन को बनाने में लगता है सबसे ज्यादा टाइम, ठीक है. सो अगर हमें पॉलिटिकल साइंस अच्छे से समझना है तो हमें क्या चाहिए? लैंग्वेज चाहिए. We need the language of the subject, and language contains terms and terminologies. And where do we get the terms and terminologies? The terms and terminologies, the basis of the terms and terminologies are in the concepts. And where do we have these concepts? We have all these concepts in the thought, political thought. Like we have geographical thought, in which we study about the geography or the terms and terminologies of geography. Like we have economic thought, in which we study about the terms and terminologies or the language of the economics. In the same way, we have political thought, which is
considered to be the foundation of the subject called political science, which contains the language of the subject, and the language of the subject has terms and terminologies. These terms and terminologies have their basis in the concepts, and these concepts are in the thought. So are you clear with these terms? Political thought. Are you clear with this term Western? Why? Because we have Western political thought, we also have non-Western political thought, like Indian political thought, Chinese political thought, right? So we also have Western political thought. And why do we call it Western? Because it has come from the western part of the world, which is also known as Europe. So the center of this political thought, I mean the place from where these political thoughts originated, is in the Western world, that is Europe. So it is also called Eurocentric subject. Political science को हम Eurocentric subject भी कहते हैं. Eurocentrism is a term which was coined by a scholar whose name is Edward Said. Right? Eurocentrism टर्म को किसने क्वाइन किया था? किसने दिया है ये टर्म? एडवर्ड साइड ने. और हम क्यों कहते हैं इसको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट? क्योंकि इसका ओरिजिन जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में आता है, यूरोप में है. ठीक है, इसका ओरिजिन कहां है? वेस्टर्न वर्ल्ड में है, यूरोप में है. तो कह सकते हैं हम कि पॉलिटिकल साइंस इज अ यूरोसेंट्रिक सब्जेक्ट. Can we say this? Can we say this? That political science is a Eurocentric subject. Or we can also say that in political science, the language of the subject comes from the western part of the world. Right? So are you clear with these three terms? Western, political and थॉट. क्लियर हो? कैन वी मूव अहेड? उस दिन ज्यादा नहीं हुआ था क्लास में, हमने कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को ही समझा था. राइट? अब इन थॉट्स, जो हम थॉट्स पढ़ते हैं, जो हमें लैंग्वेज देता है, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज देता है, वो उसका बेसिस क्या है, उसका सोर्स क्या है? द सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल थॉट इज इन द वर्क्स ऑफ the prominent scholars or the philosophers which is known as classics, तो अब हम एक और वर्ड जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं, कॉल्ड क्लासिक्स. सो द पॉलिटिकल थॉट इज there in the classics, and classics are what? Classics are exclusive books or the reference books of the prominent scholars. हर स्कॉलर क्लासिक नहीं होता है, हर स्कॉलर का हर वर्क क्लासिक नहीं होता है ना. Any Tom, Dick and Harry cannot be considered as a classic scholar, and any Tom, Dick and Harry work of a classical non-classical scholar cannot be considered to be a classics. So let's understand this term called classics. Classics are the reference books of the prominent scholars of the political world, right? For example, let's talk about Plato, right? So Plato has written n number of books in the form of dialogues, but his prominent work is Republic, which is considered as the classics. Every work of a prominent scholar
or a thinker or a philosopher cannot be termed as classics. Classics are the reference books which are class apart or class in itself. मतलब कि उनका क्लास ही अलग होता है या वो अपने आप में एक क्लास होता है, राइट? एंड व्हाई डू वी कॉल these texts or works as classics? Because they have transcendental significance. And what do we mean by the word transcendental? Something which is relevant beyond time and space. Something which is relevant beyond time and space. For example, the classic of Plato, Republic, was written 2500 years back. आज से लगभग 2500 साल पहले प्लेटो का रिपब्लिक लिखा गया. बट इवन टुडे अक्रॉस द ग्लोब his work Republic is studied by the students of political science or those who want to understand politics. A text known as Politics by his disciple, Plato's disciple Aristotle, was written in the same period because he was the student of Plato around 2500 years back, known as Politics. It is also considered as a classic, but it is studied by the students of the politics even today across the world. So is politics a classic? Why do we study classics today? Because it has, I told you na, because it has its relevance across the world even today, which is beyond time and space. मान लो 2500 साल पहले ग्रीस में एक किताब लिखी गई, ठीक है, बट उस किताब में कुछ ऐसा है जो आज के दुनिया में आज भी अक्रॉस द ग्लोब, चाहे वो अमेरिका में हो, लैटिन अमेरिका में हो, ठीक है, यूरोप में हो, एशिया में हो, उसको आज भी पढ़ा जाता है क्योंकि आज भी वो इंपॉर्टेंट है, आज भी उसका सिग्निफिकेंस है, आज भी वो रेलेवेंट है, आज भी वो प्रासंगिक है. सो something which has significance beyond time and space, something which is relevant beyond time and space, which is transcendental, is considered to be as classics. उसको क्लासिक्स कहते हैं, ठीक है. तो तुम लोग बताओ, अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडियन क्लासिक्स के बारे में बताओ. Can you tell me? Do you know the name of some classics in India? No. Is Gita a classic? Yes. Why? Why Gita is a classic? Because Gita is relevant even today. Gita is relevant even today. We refer to these books time and again. हम बार बार इन किताबों को पढ़ते हैं, समझते हैं कि आज क्या ये रिलेवेंट है, आज के दौर में जो गीता की टीचिंग्स हैं वो रिलेवेंट है. दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज क्लासिक्स. इज एवरी मूवी अ क्लासिक मूवी? जो बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवीज बनती है वो सारी मूवीज क्लासिक्स होती है? क्यों? क्योंकि आज जो बहुत पहले बना वो अभी पसंद नहीं किया जा रहा है, तो क्लासिक नहीं होगा. नहीं, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर. सी, something which will be what I said, something which is relevant even today, something Sholay, light is gone, right? So is Sholay a classic? उसको रिमूव कर दो, उसको रिमूव कर दो, रिमूव इट. शिवम, यू कैन हेल्प हर. ओके, सो इज शोले अ क्लासिक?
व्हाई इट इज क्लासिक? बिकॉज आज भी अगर कोई शोले देखेगा तो उसको उतना ही मजा आएगा जो 80s के दौर में देखा होगा, जिन्होंने शोले को 70s में देखा होगा, आज से 20 साल पहले देखा होगा और आज देखा होगा. I mean, it would be liked by every generation. That is why it is a classic. So, those prominent works of the prominent scholars, which is relevant beyond time and space, is known as classics. Can we move ahead now? Okay. But क्या क्लासिक को समझना इतना आसान है? Is it easy to understand classics? No. ओल्ड राजेंद्र नगर में जहां एनसीईआरटी की क्लासेस लेनी पड़ती हैं, जहां न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए क्लासेस लेना पड़ता है, वहां पे क्लासिक समझना आसान है? तुम लोगों को क्लासिक समझ में आ जाएगा? हाँ? क्लासिक समझ में आ जाए तो बात ही क्या है फिर? लीव इट. सो हम समझ गए हैं कि क्लासिक्स क्या होता है. इतना समझ में आया? क्लासिक्स को समझना या पढ़ना या पढ़ के समझना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? कैन एनीबडी टेल? बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ द लैंग्वेज. एंड दे आर कॉल्ड क्लासिक्स बिकॉज ऑफ द डेप्थ ऑफ द नॉलेज. उसके अंदर जो डेप्थ ऑफ द नॉलेज है, ठीक है, वो उनको क्लासिक्स बनाता है. ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. लाइक क्लासिक्स आर नॉट द बुक्स लाइक एनी अदर बुक्स. सो दे हैव द डेप्थ ऑफ नॉलेज. दे आर क्लास इन देमसेल्व्स. दे आर क्लास अपार्ट. राइट? दैट इज व्हाई दे आर क्लासिक्स. दे हैव इटर्नल सिग्निफिकेंस और रेलेवेंस. मतलब वो कल भी रेलेवेंट थे, वो आज भी रेलेवेंट हैं और कल भी रेलेवेंट रहेंगे. वो कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेंगे. इसलिए वो क्लासिक्स हैं. सो कैन वी से दैट क्लासिक्स आर द हेरिटेज ऑफ द ह्यूमैनिटी? हेरिटेज तो समझते हो ना? इज ताजमहल अ हेरिटेज ऑफ इंडिया? व्हाई इट इज कॉल्ड द हेरिटेज ऑफ इंडिया? Because it's one of the unique monuments or buildings of India, right? So जो यूनिक होगा, जिसमें यूनिकनेस होगा, उसी को तो हेरिटेज कहेंगे ना. So can we call the classics as the heritage of the humanity? तो क्लासिक्स को अब तो डिफाइन कर सकते हो तुम लोग, कर सकते हो कि क्लासिक्स आर क्लास अपार्ट or a class in themselves. They are exclusive books, or they are also called the reference books because they are referred again and again whenever the people in politics face some problems. They refer to these books to understand the politics or the nitty-gritties of the politics. समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? See, we will go slow. We will try to understand each and every term. Whenever you come across anybody and if he asks you what is classics, you should be able to explain, and you should be able to explain in such a way that he must get surprised कि अरे इसको इतना पता है. ठीक है? क्योंकि जब तक आप किसी भी टर्म्स को या टर्मिनोलॉजी को या कॉन्सेप्ट को किसी को एक्सप्लेन नहीं कर देते, तब तक वो आपका नहीं होता है. राइट? लेकिन जब आप यहां कुछ पढ़ते हैं और बाहर जाकर किसी को समझा देते हैं, तो वो आपका हो जाता है. एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. अदरवाइज यू वुड नॉट बी एबल टू राइट इट इन द एग्जामिनेशन. राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म हियर इन द क्लास इटसेल्फ. ठीक है?
और फिर बाहर जाके चाय की टपरी पे क्या करना है, किसी को पकड़ना है और उसको समझाना है। अगर ऐसे नहीं आता है तो अपना अपना पैसा देके चाय पिलाना है, और चाय नहीं पिलाना है इसलिए कि चाय पिलाना है, उसको पॉलिटिक्स समझाना है, उसको समझाना है कि क्लासिक्स क्या होता है। ठीक है, उसको समझ में आए ना आए, लेकिन समझाने के क्रम में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्लासिक्स क्या होता है, राइट। सो दैट इज व्हाई पॉलिटिक्स इज डन एट दी चाय की टपरी। ठीक है, और चाय कहां से कहां पहुंचा सकता है बताने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर देख लो चाय बेच के कहां से कहां पहुंच गए। तो लेट्स कम टू द टॉपिक अगेन। क्लासिक्स आर द एक्सक्लूसिव बुक्स और द रेफरेंस बुक्स। They are class in themselves or class apart, right? Is it easy to read classics and understand classics? No, it's not easy to read classics. First of all, once we read it, it's not easy to understand it or infer the meaning from the classics. Why? Because it has not been written in direct language or simple language. So what makes classics a class apart in themselves or a difficult book? That is truth to power. What is truth to power? क्लासिक्स डिफिकल्ट क्यों है? खासतौर पे पॉलिटिकल क्लासिक्स क्यों डिफिकल्ट माना जाता है? क्यों हर कोई पॉलिटिकल क्लासिक्स को पढ़ के समझ नहीं सकता? बिकॉज इट इज ट्रुथ टू पावर. And what do you mean by truth to power? See, पॉलिटिक्स में कौन होते हैं? पॉलिटिशियंस, रूलर्स जो रूल करते हैं. तो जो रूल करते हैं उनके पास क्या होता है? पावर होता है. दैट मीन्स दोज पीपल हु आर रूलर्स इन अर्लियर पीरियड ऑफ टाइम लाइक एंशियंट टाइम या मिडेवल टाइम, वहां किंग्स होते थे, सम्राट होते थे, एम्पेयर्स होते थे, मोनार्क्स होते थे. आज पॉलिटिशियंस हैं, राइट? तो ये लोग जो पॉलिटिशियंस हैं, तब वो पॉलिटिशियंस थे, आज डेमोक्रेसी में इलेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं, राइट? सो द पीपल हु आर इन पावर, आई मीन द पॉलिटिशियंस, आर दे गुड पीपल और बैड पीपल? आर दे गुड पीपल और बैड? खुल के बोलो ना, इसमें डरने और घबराने की क्या बात है? सो वो क्या करते हैं पॉलिटिक्स में? क्या करते हैं वो? क्यों होता है पॉलिटिक्स? और रूल क्यों करते हैं? पावर के लिए. पावर क्यों चाहिए? ओके, सो पावर चाहिए करप्शन करने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, पैसा कमाने के लिए. पैसे चाहिए ना उनको, तो पैसे के लिए पावर चाहिए. सो दे नीड वेल्थ, and for wealth they need power, right? तो तुम लोगों में से कितनों ने एक मूवी देखी है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड द मूवी कॉल्ड मदारी? मदारी देखी है तुम लोगों ने? मदारी में एक डायलॉग है, ठीक है, कि सिस्टम में भ्रष्टाचार है, ये सच नहीं है. सिस्टम में भ्रष्टाचार है, ये सच नहीं है. भ्रष्टाचार के लिए ही सिस्टम है, ये सच है. ठीक है? सो जो लोग सिस्टम में हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, वो करप्ट पीपल होंगे या अच्छे लोग होंगे? वो आर दे करप्ट और आर दे एथिकल पीपल? इन टूडेज वर्ल्ड और इन एनी पीरियड, दोज हु हैव बीन इन पावर और दोज हु आर इन पावर, they have to do corruption. They can't live without corruption, and for doing corruption they need power, right? So is it easy to say direct to them that you are corrupt? ये आसान है उनको कहना, डायरेक्ट उनसे कह सकता है कोई कि तुम करप्ट हो? In ancient Greece, one man tried to do this. His name was Socrates. And he was given hemlock to drink. उसको एक जहर दे दिया गया था पीने के लिए. He was charged with sedition, that you are corrupting the minds of the youths of Athens. So you have to die. So
अगर आप पॉलिटिक्स में सच बोलते हैं, पॉलिटिशियंस के खिलाफ सच बोलते हैं या बताते हैं कि आप करप्ट हैं, तो आपको मार दिया जाएगा, राइट? सो यू कैन नॉट से डायरेक्टली टू देम. दैट इज वाई दोज prominent scholars, since they could not tell them directly that they are corrupt, they wrote these books about the realities of the politics, right? So they since they could not write it in direct language, they wrote it in coded language. They wrote it in कोडेड लैंग्वेज, जो हर आदमी नहीं समझ सकता है, ठीक है? सो यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स. एंड व्हाट डू वी मीन बाय रीड बिटवीन द लाइन्स? व्हाट डू यू मीन बाय रीड बिटवीन द लाइन्स? दैट मीन्स you have to read these silences, you have to infer the meaning, you have to be imaginative to understand what they have written. जो लिखा है वो तो समझना ही नहीं है, जो नहीं लिखा गया है वो समझना है. जो नहीं लिखा गया है वो समझना है. दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दी silences, and that's what makes it a classic. Did you get it? So now you are aware with the term Western political thought. You understand why political thought is, or Western political thought is considered to be the foundation of the subject, because it gives the language of the subject. Language contains terms and terminologies which are there in the concepts, and the concepts are in thoughts, right? And the source of the political thought is classics. You understood the meaning of the term classics? Why it is difficult to study classics? Because it is not written in direct language, it is written in coded language. And to understand the coded language, you have to decode it. That means you have to read between the lines. That means you have to read the silences. That means you have to infer what is not written by being imaginative. Are you clear with these terms? Can we move ahead? So before, अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे how to study classics, or the methods or approach to study classics. But before we move ahead with the topic of how to study classics, let's understand a few more terms that we had done in the last class. But since a few students are new to the class, I will explain it again and again, so that these terms and terminologies get incepted into your mind. तो हमने देखा कि पॉलिटिकल थॉट क्या होता है, पॉलिटिकल थॉट का ओरिजिन क्या है, उसके सोर्सेस क्या है, क्लासिक्स में है उसका सोर्सेस. अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स हैं, लाइक थ्योरी. हमने थॉट कर लिया है, थ्योरी, फिलोसॉफी एंड आइडियोलॉजी. हम ये चार टर्म्स को समझते हैं. अभी हमने थॉट समझ लिया है, अब हम देखते हैं कि थ्योरी क्या होता है. क्या हम सभी के पास एक थ्योरी होती है? हर आदमी की अपनी थ्योरी होती है कि नहीं होती है? हर चीज की थ्योरी होती है. सुबह ब्रश करते हैं तो उसकी थ्योरी है कि नहीं? रात को सोने जाते हैं, जल्दी सोने जाते हैं. क्यों जाते हैं जल्दी सोने? क्योंकि उसके पीछे एक थ्योरी है कि सुबह में जल्दी उठना है. ठीक है, सुबह जल्दी उठेंगे तो जल्दी जल्दी काम निपटाएंगे, राइट? सो क्या है, सबके पास अपनी एक थ्योरी है. कोरोना आया, ठीक है, उसके पीछे भी थ्योरी थी. मार्केट में बेशक वो कंस्पिरेसी थ्योरी रही होगी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को दुनिया को लाना था, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो दुनिया के कैपिटलिस्ट ने वायरस छोड़ दिया. किसी की कंस्पिरेसी थ्योरी थी कि चाइना ने वायरस छोड़ दिए हैं. तो थ्योरीज होती हैं. व्हाट आर थ्योरीज? थ्योरीज क्या होती हैं? कैन यू टेल व्हाट इज थ्योरी?
theories are basically assumption, or can we say that theories are set of assumptions? हम assume ही तो कर रहे होते हैं. जैसे तुम्हारी थ्योरी क्या हो सकती है कि स्टडी नेस्ट आईएएस से पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो यूपीएससी क्रैक कर जाएंगे. ये एक थ्योरी है. बट इफ दिस थ्योरी इज प्रूवन अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, राइट, then it would become a concrete theory. So theories proven time and again becomes law in politics, right? तो theory क्या है? Theory is a set of assumption. Assume करते हैं, right? So theory is a set of assumption to understand the world around. हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए जो हम एक assumption बनाते हैं या assumption होता है हमारा, उसी को हम थ्योरी बोलते हैं. डिड यू गेट इट? सो पॉलिटिकल थ्योरी क्या होगा? पॉलिटिकल अजम्पशंस होंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इन इंडिया पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट दे कास्ट, राइट? मतलब वो अपना वोट कास्ट नहीं करते हैं, वो अपना वोट नहीं देते हैं, वो अपना वोट अपनी जाति को देते हैं, राइट? तो जाति को ही क्यों देते हैं? इसके पीछे भी एक थ्योरी होगी ना? होगी या नहीं होगी? देन टेल मी द यस, राइट? सो पॉलिटिकल थ्योरीज आर द सेट ऑफ assumptions टू एक्सप्लेन द पॉलिटिकल फेनोमेना, और पॉलिटिकल थ्योरीज आर द थ्योरीज which are about the world of politics. समझ में आ रहा है क्या होता है पॉलिटिकल थ्योरी? क्या होता है पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरीज आर द थ्योरीज which are used to explain the political phenomena. इतना याद रहेगा? अभी इतना ही समझते हैं, आगे और डिटेल में समझेंगे, राइट? एंड थ्योरी कितने तरीके की होती है? कितने तरीके की होती है थ्योरी? थ्योरी दो तरीके की होती है. एक होती है नॉर्मेटिव थ्योरी, और दूसरी होती है साइंटिफिक थ्योरी. ठीक है? कितने तरीके की होती है थ्योरी? ये याद रहेगा? थ्योरी कितने तरीके की होती है? दो तरीके की. नॉर्मेटिव थ्योरी मीन्स वैल्यू बेस्ड थ्योरी, ठीक है, विच कंटेन्स वैल्यूज, राइट? जैसे कि हम कह सकते हैं कि लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, ये सब क्या है? नॉर्मेटिव थ्योरी कह सकते हैं हम, राइट? उसी तरीके से एम्पेरिकल थ्योरी होता है, डेटा बेस्ड थ्योरी होता है, राइट? Open the so we have two types of theories. One is normative theory. Normative theories are also called value based theory, or we can also call it philosophical theories. Shivam, can we also call it philosophical theories? And the other one are scientific theories or empirical theory, which is based on scientific data. अभी इतना ही समझते हैं? Are you getting my point? इतना तो समझ में आ रहा है कि theories set of assumption. Theories are of two types, normative and scientific. Normative theories are value based theories or philosophical theories. They are also called philosophical theory, and the another one is scientific theory or empirical theory, right? Why theories are required? Theories have causal significance. That means theories tell you the answer of why. क्यों? जैसे वोटिंग में हम वोटिंग बिहेवियर को स्टडी करते हैं. इलेक्शंस में क्या करते हैं? वोटिंग बिहेवियर को स्टडी करते हैं. तो
किसी कास्ट ने अपने ही कास्ट के लोगों को वोट दिया, ठीक है, क्यों दिया? तो उसका स्टडी यहां होगा साइंटिफिक थ्योरी में। डेटाबेस थ्योरी, हम डेटा लाएंगे पहले कि फलाने इलेक्शन में फलाने कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने लोगों ने, इस कास्ट के इतने लोगों ने इस कैंडिडेट को वोट किया, राइट? सो कैन वी कॉल इट एम्पेरिकल थ्योरी और साइंटिफिक थ्योरी? यस और नो? ओके, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ थ्योरीज, normative theory and scientific theory, and theories are used to explain, right, a phenomena. So in political science, political theories are used to explain the political phenomena. इतना याद रहेगा। अब देखते हैं कि फिलोसॉफी क्या होता है। What do we mean by the term philosophy? So, philosophy is made up of two words, philo and sophia. Philo plus sophia. Philo means love and sophia means knowledge. Philo means love and sophia means knowledge. So can we say that love for knowledge is philosophy? Can we say that love for knowledge is philosophy? So what kind of knowledge? What kind of knowledge here we are talking about? Here we are talking about deep knowledge. The search for deep knowledge. Search for deep knowledge. Philosophy is what? Philosophy is the search for deep knowledge, or we can also say that love for knowledge is philosophy. अब थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम एक्सप्लेन करते हैं इसको, लाइक लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का एग्जांपल लेते हैं। सो कैन वी से दैट यूनिवर्स हैज टू रियल्म्स? कैन वी से दैट यूनिवर्स हैज टू रियल्म? Universe has how many realms does the universe have? Tell me. Who will tell? Universe के कितने realm हैं बताओ? Shivam, yes. Can you tell me how many realms does the universe have? Universe has two realms. Did you get the meaning of this term philosophy? I had explained the meaning of theory, right? Theory is used for explanation, right? In politics, what does it explain? The political phenomena, right? In political science, political theory explains the political phenomena. So एक चीज याद रखने वाली जो है, जो हमारे सिग्निफिकेंस की है, वो क्या है? थ्योरी का यूज एक्सप्लेनेशन के लिए किया जाता है, ठीक है? Philosophy is made up of two words, philo plus sophia. Philo means love, sophia means knowledge. So what is philosophy? Love for knowledge. Philo means love, sophia means knowledge. So philosophy is love for knowledge. What kind of knowledge? What kind of knowledge? Deep knowledge. So search for deep knowledge or deeper knowledge is philosophy. Now थोड़ा अब इसको और डिटेल में समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने एक टर्म लिया, यूनिवर्स। यूनिवर्स में हम रहते हैं, ठीक है? सो यूनिवर्स हैज टू रियल्म्स। कितने रियल्म्स हैं यूनिवर्स के? दो, ठीक है? एक है मैटेरियल रियल। क्या है? मैटेरियल रियल
एंड दूसरा है स्पिरिचुअल रियल। स्पेलिंग तुम लोग देख लेना, ठीक है। यूनिवर्स हैज टू रियल्स, वन इज मटेरियल रियल एंड अनदर वन इज स्पिरिचुअल रियल। मटेरियल रियल का मतलब क्या होता है? जो मेटलिस्टिक चीजें हैं, लाइक हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो भौतिक चीजें हैं। सो मटेरियल रियल इज द एरिया ऑफ स्टडी ऑफ फिजिक्स, लाइक पहाड़, पर्वत, नदी, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, जो भी दिखता है खुली आंखों से दिखता है। तो कैन वी से दैट मटेरियल रियल refers to the visible realm of the universe, which is the world of appearances। जो हम आंखों से देख सकते हैं, जो appear होता है, दिखता है, उसको हम कह सकते हैं कि ये मटेरियल रियल में आ जाएगा, ठीक है। बट देयर आर थिंग्स विच वी कैन नॉट सी बट वी कैन अंडरस्टैंड। देयर आर थिंग्स विच वी कैन नॉट सी बट वी कैन understand, which we talk about, which we feel, like ideas or a spirit, like we talk about God। God को देखा है आपने? हैं? आपने पहाड़ देखा है, नदी देखा है, पौधे देखे हैं, इंसान देखे हैं, जानवर देखे हैं, तो ये मटेरियल रियल में आपने देखा है। बट क्या आपने गॉड को देखा है? भूत को देखा है? बट बात करते हो ना? सो व्हाट आर these are ideas, concepts, right? So the other realm of the universe is a spiritual realm, right? Which is invisible, beyond appearances, जो दिखता नहीं है। The realm which is beyond appearances, हम इसको कह सकते हैं spiritual realm। So a spiritual realm is the realm of ideas, a spirit or concepts। Can we say it is the realm of ideas, a spirit or concepts? बोल सकते हैं हम? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते भाई? बोलो। तो this is the realm of what? Philosophy। This is the realm of philosophy। Can we say this? समझ में आया या दोबारा रिकनेक्ट करूं मैं? You tell me, Mr. Khan, you tell me, can we say that the world of ideas, the world of spirit or the world of concept is the spiritual realm of the universe, which we study into the subject called or a stream called philosophy। philosophy में ideas ही पढ़ते हैं हम बेसिकली, ठीक है। और ये जो मटेरियल रियल में, ये किसके लिए छोड़ देते हैं? फिजिसिस्ट्स के लिए, जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, मतलब इसको साइंस वाले के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड ये अब थ्योरी भी क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी भी पॉलिटिकल फिलॉसफी है। कैन वी यूज द वर्ड्स इंटरचेंजेबली? पॉलिटिकल थ्योरीज आर पॉलिटिकल फिलॉसफी ओनली, राइट? पॉलिटिकल साइंस अर्लियर वाज कॉल्ड एज पॉलिटिकल फिलॉसफी, विच वाज अ ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट कॉल्ड एथिक्स, ठीक है। एथिक्स से ही पॉलिटिकल फिलॉसफी आई, पॉलिटिकल फिलॉसफी से पॉलिटिकल साइंस आता है, राइट? अब हम बात करते हैं, एक टर्म रह गया समझने के लिए, वो है आइडियोलॉजी। क्या रह गया? आइडियोलॉजी। सो व्हाट इज आइडियोलॉजी और आइडियोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ती है? कैन वी से दैट आइडियोलॉजी इज ऑल्सो अ सेट ऑफ आइडिया? आइडिया का ही एक सेट है। जैसे थ्योरी सेट ऑफ असम्पशन है, वैसे आइडियोलॉजी क्या है? सेट ऑफ आइडियाज है, ठीक है। सो आइडियोलॉजी की जरूरत क्यों है? वी आर लिविंग टुडे इन मास डेमोक्रेसीज। पूरी दुनिया जो है वो कहां रह रही है? डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रही है। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, ठीक है। सो
to mobilize the people to come out of their house and vote for the politicians. Politicians need ideology. For the mobilization of the masses, we need what? We need ideology. So ideology is for the consumption of the masses. Can we say that ideology is for the consumption of the masses? And why do we require ideology? To bring out people of their home to vote to cast their vote. उनका वोट लेना है तो उनको आइडियोलॉजी की घुट्टी पिलानी पड़ेगी. जैसे अब बात करते हैं, एक स्कॉलर हैं, ठीक है, उनका नाम है ग्रामसी. क्या नाम है? ग्रामसी. तो उन्होंने कहा कि फिलोसॉफी इज फॉर इंटेलेक्चुअल्स. फिलोसॉफी इज फॉर इंटेलेक्चुअल्स एंड आइडियोलॉजी इज फॉर द मासेस. उदाहरण के लिए हम बात करते हैं आइडियल स्टेट की, ठीक है. तो अगर आइडियल स्टेट समझाने जाएंगे हम मासेस को, लोगों को, तो उनको समझ में आएगा? नहीं आएगा. तो महात्मा गांधी ने आइडियल स्टेट समझाने के लिए क्या यूज किया? रामराज्य. एक टर्म यूज किया, रामराज्य. तो रामराज्य इंडिया में सबको समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ? क्यों? क्योंकि राम एक माइथोलॉजिकल फिगर है, कैरेक्टर है. वो अयोध्या के राजा थे, दशरथ के पुत्र थे, ठीक है. उनका जीवन कैसा था? वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे. ये कहानियां उन्होंने बचपन से सुनी है, ठीक है. उनके राज्य में सब खुश रहते थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, ठीक है. तो ये कहानियां उन्होंने सुन रखी है. तो एक आइडियल स्टेट था. बट अगर हम आइडियल स्टेट आम आदमी को समझाने जाएंगे तो क्या आम आदमी को आइडियल स्टेट समझ में आएगा? नहीं आएगा समझ में. बट हम अगर उसको राम राज्य की बात करेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा. सो कैन वी से दैट हिंदुइज्म इज अ फिलोसफी बट हिंदुत्व इज एन आइडियोलॉजी? कैन वी से दैट हिंदुइज्म इज अ फिलोसफी, a way of life, but Hindutva is an ideology? Can we say? So political ideologies are set of political ideas used by political parties for the mobilization of the people or the public to cast their vote. अभी इतना ही समझना है. जब हम आइडियोलॉजी चैप्टर करेंगे तो और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में जाएंगे. इफ आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. वी हैव टू मूव अहेड. सो वी understood the meaning of the terms like Western political thought, theory, philosophy, ideology. इसमें डिफरेंशिएशन भी हमने देख लिया. थ्योरी का यूज किया जाता है टू एक्सप्लेन अ पॉलिटिकल फेनोमेना. फिलोसॉफी इज लव फॉर नॉलेज और द स्टडी ऑफ आइडियाज. कह सकते हैं स्टडी ऑफ आइडियाज, द इनविजिबल रियल, द आइडियाज विच आर बियॉन्ड अपीयरेंसेस, जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, हम उसकी स्टडी करते हैं फिलोसॉफी में. और आइडियोलॉजी क्या होता है? आइडियोलॉजी इज अ टूल, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द पॉलिटिशियंस टू मोबिलाइज द पब्लिक. राइट? वी आर क्लियर विद दीज टर्म्स. और पॉलिटिकल फिलोसफी या पॉलिटिकल थ्योरी का ओरिजिन कहां है? इन द इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी ऑफ द मैन और ह्यूमंस. ठीक है? जैसे हम किसी आइडिया के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं और डीपर नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो उसका ओरिजिन कहां है? इन द इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी ऑफ द मैन. अगर किसी के अंदर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी नहीं होगी, उत्सुकता नहीं होगी, उसका इंटेलेक्ट उसको उत्सुक नहीं करेगा, वो जानने के लिए तो नहीं जान पाएगा. सो द ओरिजिन ऑफ द
फिलोसफी और थ्योरी इज इन द इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी ऑफ द मैन। यहां तक समझ में आया? चलो, सो नाउ वी आर अवेयर विद दीज टर्म्स like Western political thought, theory, philosophy, ideology and classics। अब हम फिर वापस आएंगे कहां? क्लासिक्स पे। हमने ये तो समझ लिया है कि क्लासिक्स क्या होता है। क्लासिक्स आर द रेफरेंस बुक्स और एक्सक्लूसिव बुक्स विच हैज transcendental significance, that means they are relevant beyond time and space। वो अमेरिका के लिए भी रेलेवेंट होगा और वो इंडिया के लिए भी रेलेवेंट होगा। तो बियॉन्ड स्पेस हुआ या केवल ग्रीक के लिए होगा? केवल ग्रीस के लिए नहीं है ना? ठीक है। और क्या वो 327 BC के आसपास जब आया था प्लेटो ग्रीस में, तभी रेलेवेंट था, या उसके आने वाले शताब्दियों में और मिलेनिया में भी रेलेवेंट था? और आज भी रेलेवेंट है? आज भी रेलेवेंट है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज रेलेवेंट बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। ठीक है। अब देखते हैं कि मेथड्स और approaches to study classics, to study classics। तो इतना तो समझ में आ गया कि क्लासिक्स क्या होता है। अब ये समझते हैं कि क्लासिक्स को स्टडी कैसे किया जाता है। और अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो टर्म्स, थ्योरी, फिलोसफी, आइडियोलॉजी, वो क्यों किया था वो अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द प्रीवियस थिंग। अगर पहले का टर्म समझ में नहीं आया तो आगे का टर्म समझ में नहीं आएगा। दैट इज वाई पॉलिटिकल साइंस इज अ मास्टर साइंस। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ना समझना सबके बस की बात नहीं है, औकात ही नहीं है। ठीक है। ज्योग्राफी का मिनरल थोड़ी है, सियाल और सीमा पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। एनी Tom, Dick and Harry cannot understand political science. That is why it is called the master science। क्या कहते हैं इसको? मास्टर साइंस। क्यों कहते हैं मास्टर साइंस? क्योंकि जिनको मास्टर बनना होता है वो पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस। और मास्टर का मतलब क्लास वाले मास्टर साहब नहीं है यहां पे। ठीक है। मालिक। मास्टर मतलब, मास्टर साइंस मतलब क्या? मालिक का साइंस, नौकर का साइंस नहीं। तुम लोग यहां क्यों बैठे हो? मालिक बनने के लिए ना। अरे जिले का मालिक बनना चाहते हो ना? IAS बनोगे तो क्या चाहिए तुमको? पावर चाहिए। हाँ, जिले का मालिक बनना है इसलिए बैठे हो ना यहाँ जी, इसलिए पढ़ रहे हो पॉलिटिकल साइंस। और सबकी औकात नहीं है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की। अपना कॉन्फिडेंस देखना और बाहर जाकर के उन लोगों से मिलो जिनका ऑप्शनल दूसरा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, ठीक है, फिजिक्स है। उनसे मिलो, उनसे बात करो, तुमको पता चल जाएगा। बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है। कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखेगा एंथ्रोपोलॉजी वाले के पास, लेकिन तुम जाओ पता चल जाता है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आया है, मास्टर साइंस। अब देखते हैं कि अप्रोचेस क्या है क्लासिक्स को पढ़ने के। तो देयर आर थ्री अप्रोचेस टू स्टडी क्लासिक्स। फर्स्ट इज कॉन्टेक्सचुअल अप्रोच, सेकेंड इज टेक्सचुअल अप्रोच, एंड थर्ड इज इंटरप्रिटेटिव अप्रोच। कितने अप्रोचेस हैं क्लासिक्स को पढ़ने के? देयर आर थ्री अप्रोचेस, और भी हैं बताएंगे, बट मेन यही है, मेन यही तीन है। कॉन्टेक्सचुअल अप्रोच, टेक्सचुअल अप्रोच एंड
इंटरप्रिटेटिव अप्रोच। तो कॉन्टेक्सचुअल अप्रोच के जो स्कॉलर हैं उनका नाम है सेबाइन। क्या नाम है? क्या नाम है? नाम याद रहेगा, सेबाइन। और टेक्सचुअल अप्रोच के जो स्कॉलर हैं उनका नाम है लियो स्ट्रॉस। क्या नाम है? लियो स्ट्रॉस। और तीसरा अप्रोच है इंटरप्रिटेटिव अप्रोच। इसमें हम रख सकते हैं डेरिडा को। किसको रखेंगे? डेरिडा को। कॉन्टेक्सचुअल अप्रोच चूंकि कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या? संदर्भ। उस संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में, उस स्थिति परिस्थिति में, उस सर्कमस्टांसेस में, उस सिचुएशन में। तो कैन वी से दैट कॉन्टेक्सचुअल अप्रोच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच कह सकते हैं हम। कॉन्टेक्सचुअल अप्रोच को हिस्टोरिकल अप्रोच कह सकते हैं। और टेक्सचुअल तो टेक्सचुअल है ही, मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड। ठीक है। और इंटरप्रिटेटिव अप्रोच को हम क्या कहते हैं? बताओ, और किस नाम से जानते हैं? डिकंस्ट्रक्शन, डिकंस्ट्रक्शन या डिस्कोर्स एनालिसिस भी कह सकते हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस। ठीक है, इतना याद रहेगा? नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? चलिए अब बारी बारी से समझते हैं। तो समझने के लिए हम एक क्लासिक उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है? वही बताया था ना, क्या है रिपब्लिक? रिपब्लिक इज अ टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट, राइट, ऑफ अ प्रोमिनेंट स्कॉलर हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी। नेम इज प्लेटो। प्लेटो को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी। ठीक है। और सोक्रेटिस को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ फिलोसॉफी। सोक्रेटिस इज नोन एज फादर ऑफ फिलोसॉफी, प्लेटो इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी, और एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो आज इस सब्जेक्ट के 3 बाप के बारे में पता चला तुमको। ठीक है, ये सब बाप हैं। क्या हैं? बाप हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज नथिंग बट द फुट नोट्स टू एरिस्टोटल एंड प्लेटो। ठीक है। फुटनोट्स का मतलब क्या होता है? टिप्पणी लिखते हैं ना, टिप्पणी लास्ट में जब हम कोई चीज लिखते हैं नीचे में एक नोट लिख देते हैं। ठीक है, नीचे में होता है इसलिए उसको फुट बोलते हैं। तो फुटनोट क्या होता है? टिप्पणी होती है। सो जो हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम किन किन को पढ़ते हैं? सोक्रेटिस को पढ़ते हैं, प्लेटो को पढ़ते हैं, एरिस्टोटल को पढ़ते हैं, मैकियावेली को पढ़ते हैं, थॉमस हॉब्स को पढ़ते हैं, और बहुत सारे राइटर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, मिल को पढ़ते हैं, लॉक को पढ़ते हैं। ये जितने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम जितने फिलोसफर्स को पढ़ते हैं, उन सबकी जो फिलॉसफी है, ठीक है, उनके बारे में कहा गया कि एंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज नथिंग बट द फुट नोट्स टू एरिस्टोटल, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। मतलब उस पे कमेंट्रीज हैं। उन्होंने जो पॉलिटिकल थॉट दिया, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी दी, उसी का फुट नोट है, राइट। बाकी की एंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल फिलोसॉफी, राइट। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। हमने एक क्लासिक उठाया, किसका? प्लेटो का। नाम क्या है इसका? रिपब्लिक। अब तुमको मान लो कि ये मैंने, सपोज करो ये टेक्स्ट बुक है, आई गेव यू दिस टेक्स्ट बुक,
पढ़ने के लिए। एक्सक्यूज मी, वेयर इज योर अटेंशन? पे योर अटेंशन हियर। सो सपोज करो दिस इज रिपब्लिक, आई हैव गिवन इट टू यू, व्हाट विल यू डू? क्या करोगे इसके साथ? ये एक टेक्स्ट बुक है, अगर मैंने आपको ये टेक्स्ट बुक दिया तो आप क्या करेंगे? इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो रीड करेंगे। क्या करेंगे? रीड करेंगे। क्या करेंगे? रीड करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना था कि ये किसी आम बुक की तरह नहीं है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा समझ में? आम बुक नहीं है, ठीक है, ये तो एक लॉजिक है। और मैंने एक वर्ड यूज किया था, यस, साइलेंसेस, दैट इज द राइट वर्ड। यू हैव टू रीड, नॉट जस्ट रीड what is written in the book, but you also have to read or understand what is not written, that is reading between the lines, the silences. तो आप क्या करेंगे? यहां स्ट्रगल करेंगे? स्ट्रगल करेंगे कि नहीं करेंगे? स्ट्रगल होगा किताब के साथ? समझ में नहीं आएगा, क्या जाएगा? बताओ। हमने आपको एक क्लासिक दिया पढ़ने के लिए, आपको क्लासिक समझ में आ जाएगा? अरे बोलो ना, यस और नो। बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो बोलो। हमने आपको एक बुक दी, रिपब्लिक, बोला पढ़ो इसको। नहीं समझ में आएगा तो क्या करोगे? यहां साइलेंसेस नहीं चाहिए, वहां साइलेंसेस है, वहीं तक ठीक है, यहां साइलेंसेस नहीं चाहिए। क्या करोगे? नहीं समझ में आएगा तो हम क्या कहेंगे? हाँ, कि एक काम करो, इसको फिर से पढ़ो, एक बार और पढ़ो, जाओ इसको फिर से पढ़ो। तो हम कहेंगे कि रीड इट अगेन एंड अगेन। हम क्या बोलेंगे? रीड इट अगेन एंड अगेन। एक बार में समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ो। तुम गए पढ़ने के लिए, तुमको फिर समझ में नहीं आया, फिर आओगे लेके, बोलोगे कि समझ में नहीं आया, तो हम क्या कहेंगे तुमसे? हम क्या कहेंगे? ठीक है, एक काम करो, तुमको दोबारा पढ़ के समझ में नहीं आया तो हम तुमको दूसरा मेथड देते हैं, ठीक है? अगर पढ़ के समझ में आ जाता टेक्स्ट, तो ये क्या, कौन सा अप्रोच में आ जाता? कौन से अप्रोच में आ जाता? ये टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच में आ जाता। टेक्स्ट को पढ़ा, समझ में आ गया, तो हमने टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच लिया, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट पढ़ के समझ में नहीं आया तो हम क्या कहेंगे? कि ठीक है, एक काम करो, इसके बैकग्राउंड में जाओ। क्या कहेंगे? इसके बैकग्राउंड में जाओ। कहां जाओ? इसके बैकग्राउंड में जाओ, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाओ, रिपब्लिक के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाओ। देखो कि ये कहां लिखा गया था। बोलेंगे ना, कब लिखा गया था? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कहां लिखा गया था, कब लिखा गया था, और क्यों लिखा गया था? क्यों लिखा गया था? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मतलब आई एम आस्किंग यू टू गो इनटू द बैकग्राउंड ऑफ द रिपब्लिक, द क्लासिक, द टेक्स्ट विच हैज बीन रिटन। तो कब लिखा गया था ये? 327 बीसी में। कब लिखा था? 327 बीसी में। किसने लिखा था? प्लेटो ने लिखा था। किसने लिखा था? प्लेटो ने लिखा था। कहां लिखा था? एंशिएंट ग्रीस के सिटी स्टेट जिसका नाम था एथेंस में। कहां लिखा था? एथेंस में। और क्यों लिखा था? वाई? क्योंकि एथेंस और स्पार्टा का वॉर हुआ था, ठीक है। पेलोपोनेशियन वॉर हुआ था जिसमें एथेंस और स्पार्टा आपस में लड़े थे, ठीक है, जिसमें स्पार्टा ने एथेंस को
हरा दिया था। ठीक है, क्या किया था? हरा दिया था। तो आपने क्या जाना, क्या जाना है यहां पे बताओ? बताओ। आपने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टडी किया। क्या किया? इस टेक्स्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टडी किया। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब पढ़ोगे तब हो सकता है थोड़ा समझ में आएगा कि रिपब्लिक क्यों लिखा गया, कब लिखा गया, किसने लिखा और उसके पीछे की कहानी क्या थी। स्टोरी पता करोगे? करोगे ना? हाँ, तो भाई बोल क्यों नहीं रहे हो तेजी से? हाँ, हेलो, बोल क्यों नहीं रहे हो? सी, एक स्कॉलर हुए हैं वेस्ट में, उनका नाम है लास्की। क्या नाम है? लास्की। कौन थे लास्की? हैं? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के टीचर थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के टीचर थे। इन्होंने कहा है कि एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। क्या कहा है? एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। मतलब अगर कोई स्कॉलर, कोई थिंकर या कोई फिलोसफर कोई किताब लिख रहा है, ठीक है, तो अपने टाइम से, अपने जिस दुनिया में वो रहता है, जिस एरा में वो रह रहा है, जिस युग में रह रहा है, जिस टाइम और सर्कमस्टांसेस में रह रहा है, उसी का तो इन्फ्लुएंस होगा ना उसके माइंड पे और राइटिंग पे। होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो क्या वो अपने टाइम के, अपने स्पेस के, मतलब वो जहां रह रहा है और जिस एज में या एरा में रह रहा है, युग में रह रहा है, उसका इंपैक्ट होगा या नहीं होगा? तो उसी के बारे में लिखेगा ना वो। उस समय के चैलेंजेस के बारे में लिखेगा, या उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए उसके पास जो सजेशंस होंगे उनको देगा वो, राइट? तो प्लेटो ने रिपब्लिक में फिलोसोफर किंग का एक आइडिया डिस्कस किया है, दिया है, ठीक है, और स्टेट कैसे गवर्न किया जाना चाहिए, कैसे रूल किया जाना चाहिए, उसमें प्रॉपर स्टेशनिंग कैसे होनी चाहिए लोगों की, तो उसके बारे में लिखा है, ठीक है। तो अगर आपको रिपब्लिक को समझना है या रिपब्लिक में जो आइडियाज हैं क्लासिक में उसको समझना है, तो जो कॉन्टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच, जो हिस्टोरिकल अप्रोच वाले हैं, वो आपको क्या बोलेंगे कि आप जाके उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री को पढ़ो, जानो, समझो, तो ये रिपब्लिक जो टेक्स्ट है आपको समझ में आ जाएगा। ये बोलेगा ना? यस और नो? कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। हाँ खान साहब, बोलेंगे आप कुछ? बताइए। हिस्टोरिकल अप्रोच के थ्रू समझा जा सकता है क्लासिक्स को। हाँ, तो जो लोग इसको हिस्टोरिकली समझने की कोशिश करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? द एक्सपोनेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच। या क्लासिक्स को पढ़ने का क्या अप्रोच हो सकता है? एक हिस्टोरिकल अप्रोच हो सकता है, जिसको कॉन्टेक्सचुअल अप्रोच भी कहते हैं। और इसके जो एक्सपोनेंट हैं, इसके जो स्कॉलर हैं, वो कौन है? सबाइन। सबाइन ने क्या कहा कि अगर टेक्स्ट को समझना है तो हमें उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? और ये हिस्टोरिकल अप्रोच किसके लिए आसान होगा, किसके लिए सही है? ऑर्डिनरी लोगों के लिए, ठीक है। तो कैन वी से दैट हिस्टोरिकल अप्रोच इज गुड फॉर ऑर्डिनरी पीपल और ऑर्डिनरी फोक?
एंड कैन इट ऑल्सो बी कॉल्ड एज कॉमन सेंसिकल अप्रोच? कह सकते हैं हम कि ये कॉमन सेंसिकल अप्रोच है। हिस्टोरिकल अप्रोच को या कॉन्टेक्सचुअल अप्रोच को कॉमन सेंसिकल अप्रोच कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को समझने के, वो 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 3 इसेंशियल एलिमेंट्स टू अंडरस्टैंड एनी टेक्स्ट और एनी क्लासिक, उसको भी फुलफिल करता है। ठीक है, वो 3 इसेंशियल एलिमेंट्स साइबाइन के अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं? साइबाइन ने कहा है कि 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो किसी भी टेक्स्ट को हिस्टोरिकली अगर उसको समझना है, कॉन्टेक्सचुअली उसको समझना है, तो 3 एलिमेंट चाहिए। देखते हैं वो 3 एलिमेंट कौन है। तो पहला है फैक्चुअल, दूसरा है कॉजल, और तीसरा है इवैल्यूएटिव। अब इसको समझते हैं। तो जैसे कि रिपब्लिक को समझने के लिए हमने पता किया कि ये कहां लिखा गया था, कब लिखा गया था और क्यों लिखा गया था। तो लिखा गया था एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट एथेंस में। कब लिखा गया था? 327 बीसी में। क्यों लिखा गया था? क्योंकि उसके बैकग्राउंड में वॉर है स्पार्टा और एथेंस के बीच में। तो ये फैक्ट्स पता चला आपको। तो फैक्चुअल जो इसेंशियल एलिमेंट है कॉन्टेक्सचुअल अप्रोच का, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है ये हिस्टोरिकल अप्रोच, करता है। तो फैक्चुअल डेटा हमें मिल जाता है कहां? जब हम कॉन्टेक्सचुअल अप्रोच के थ्रू किसी टेक्स्ट को अप्रोच करते हैं। ठीक है, कॉजल, क्यों हुआ था, क्यों लिखा गया था, ये फैक्ट्स क्यों है? क्योंकि वॉर हुआ था एथेंस और स्पार्टा के बीच में। तो कारण पता चला, इसके बैकग्राउंड में कारण पता चला ना, किसका बैकग्राउंड में वॉर हुआ था, उसके वजह से ये टेक्स्ट लिखा गया। ठीक है, और अब क्या किया जाना चाहिए? तो उसने बोला कि ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है यहां, ठीक है, डेमोक्रेसी में मूर्ख लोग रूल करते हैं। ठीक है, और मूर्ख लोगों के रूल करने के वजह से एथेंस हारा है। ठीक है, तो उसने एक सजेशन दिया, ठीक है, कि अब फिलोसोफर किंग का राज होना चाहिए। तो उसने क्या किया? सजेशन दिया। ही टोल्ड व्हाट शुड बी डन। एक्शन की बात कर रहा है वो, कि अब ये सॉल्यूशन है, ये एक्शन लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो एक्शन वाला पार्ट यहां पूरा हो रहा है। इवैल्यूएशन करने के बाद बता रहा है वो, सजेशन भी दे रहा है। तो ये तीनों एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं किसी टेक्स्ट को पढ़ने के कॉन्टेक्सचुअली, उसको पूरा कर रहा है ये। हाँ, कर रहा है ना। So it is fulfilling, the contextual approach is fulfilling all the 3 criterias, or it's giving the 3 essential elements to understand a classic or a text. यहां तक क्लियर है? Should I move ahead? अब देखते हैं टेक्सचुअल अप्रोच वालों को। लेकिन एक बात बताओ, जब हम किसी चीज को कॉन्टेक्सचुअली पढ़ेंगे, किसी टेक्स्ट को या क्लासिक को कॉन्टेक्सचुअली पढ़ेंगे, तो क्या दिक्कत आ सकती है? लेट्स डिस्कस दैट एज वेल हियर ओनली। क्या दिक्कत आएगी? हमें पढ़ना है रिपब्लिक, और अगर हम कॉन्टेक्सचुअल अप्रोच के थ्रू रिपब्लिक को पढ़ते हैं
तो अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एक और किताब पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। आई मीन एक सब्जेक्ट ही बदल जाएगा हमारा। हम आए थे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने और अब जा रहे हैं हिस्ट्री पढ़ने के लिए। सो इज इट एडिंग टू द एडिशनल बर्डन? सो कैन वी से दैट इट इज अ चैलेंज? रीडिंग हिस्ट्री is an additional burden. So isn't it a challenge? डिफिकल्टी है ना इसको पढ़ने में। पहली चीज तो यह है कि अब एक नई किताब, एक नया सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, ठीक है। दूसरा चैलेंज क्या है, क्या हिस्ट्री which has been written is correct or history written is also biased? हिस्ट्री बायस्ड हो सकती है या नहीं हो सकती है? पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में जो युद्ध हुआ, ठीक है, उसमें पोरस जीता या अलेक्जेंडर जीता, ठीक है। जो यूनानी लोग हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं, उनका कहना है कि अलेक्जेंडर जीता, और अब हम इंडियंस कह रहे हैं कि पोरस जीता था। सो इज हिस्ट्री बायस्ड और नॉट? हिस्ट्री बायस्ड हो सकती है। जो राइटर है, जिसने हिस्ट्री लिखी है, वो बायस्ड हो सकता है या नहीं हो सकता है? सो गोइंग थ्रू द कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच, कैन वी से दैट रीडिंग हिस्ट्री is adding to another challenge of additional burden of reading history, plus history is biased, so there is a possibility or a chance of getting lost into the subject? हो सकता है ना कि हमारा मेन पर्पस था रिपब्लिक को समझना और हम चले गए हिस्ट्री समझने के लिए। अब हम हिस्ट्री में खो जाएंगे, प्लस हिस्ट्री बायस्ड है, ठीक है। तो रिपब्लिक एक तो ऐसे ही समझना डिफिकल्ट था, उसके साइलेंसेज को समझना डिफिकल्ट था, प्लस हम अब हिस्ट्री पढ़ेंगे। डोंट यू थिंक इट्स गेटिंग मोर डिफिकल्ट? टेल मी शिवम, यू टेल मी। आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा है अच्छे से, तो तुम ही बताओ। डिफिकल्टी है ना? पहली डिफिकल्टी है द एडिशनल बर्डन ऑफ रीडिंग हिस्ट्री। दूसरा, वी कैन गेट लॉस्ट इनटू रीडिंग हिस्ट्री। तीसरा, हिस्ट्री इज बायस्ड। और चौथा, वी कैन गेट लॉस्ट, हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि यार इतना झंझट पालने की जरूरत नहीं है। कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच जो है, हिस्टोरिकल अप्रोच है, उसको ठंडे बस्ते में डालो। हो सकता है किसी को पसंद आएगा तो वो पढ़ेगा कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच के थ्रू। तो अब एक दूसरे स्कॉलर हैं, वो कहते हैं भाई पढ़ने के लिए तो तुम पढ़ लोगे कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच के थ्रू या हिस्टोरिकल अप्रोच के थ्रू, बट इसके खिलाफ जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या है? वो बताओ, यस करो तुम लोग, क्या हो सकता है? क्या है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट अगेंस्ट दी? चूंकि कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच हम पढ़ रहे थे अभी, सेबाइन के द्वारा सपोर्ट किया लास्की ने भी कि एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। तो इससे ये पता चलता है कि हर थिंकर जो है अपने सरकमस्टांस, अपने समय के बारे में लिखता है। सेबाइन ने भी बोला कि हिस्टोरिकल अप्रोच से हम रिपब्लिक को समझ सकते हैं। लेकिन अब आ रहे हैं प्रोफेसर साहब। कौन आ रहे हैं? प्रोफेसर साहब, दूसरे प्रोफेसर, उनका नाम है लियो स्ट्रॉस। क्या नाम है उनका? लियो स्ट्रॉस। कौन आ रहे हैं? लियो स्ट्रॉस। और ये है प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का। ये कह रहा है कि भाई ठीक वैसे ही जैसे मैं कहूं कि हिस्ट्री पढ़ लो पॉलिटिक्स को समझने के लिए, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम लोग कहो कि यार किस टाइप का फैकल्टी है ये, ठीक है, टेक्स्ट नहीं समझा पा रहा है, अब हिस्ट्री सजेस्ट कर रहा है। डर है ना भाई कि पॉल साइंस ऑप्शनल छोड़ के हिस्ट्री पढ़ने चले जाओगे तुम लोग। चलो हिस्ट्री पढ़ लेते हैं।
हाँ, वैसे ही लियो स्ट्रॉस को प्रॉब्लम है कि अगर हिस्टोरिकल अप्रोच के थ्रू किसी क्लासिक्स को पढ़ा जाता है तो द क्लासिक विल लूज इट्स रेलेवेंस ऑफ बीइंग क्लासिक। ठीक है, जब हम उस कॉन्टेक्स्ट में जाके, उस पीरियड में जाके, उस एज में जाके, उस टाइम में जाकर के क्लासिक्स को पढ़ेंगे और क्लासिक्स को वहां देखेंगे तो कहेंगे यार आज के टाइम में तो फिर इसका क्या रेलेवेंस है, या इसका रेलेवेंस ग्रीस में था, इंडिया में नहीं है, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में नहीं है, चाइना में नहीं है, अमेरिका में नहीं है। तो इसका जो ट्रांसेंडेंटल रेलेवेंस है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, जो इसका रेलेवेंस है वो खो जाएगा या नहीं खो जाएगा हिस्टोरिकल अप्रोच के थ्रू, कॉन्टेक्चुअल अप्रोच के थ्रू। सो द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द हिस्टोरिकल और contextual approach is it may lose the status of being a classic। आया समझ में क्या? इसका जो टाइमलेसनेस है, इसका जो स्पेसलेसनेस है, क्योंकि हम तो हिस्ट्री में जाके समझ रहे हैं ना इसको, उस कॉन्टेक्स्ट में जाके देख रहे हैं। सो स्टडीइंग अ क्लासिक्स हिस्टोरिकल थ्रू हिस्टोरिकल अप्रोच or through contextual approach makes it lose its status as a classic। क्वेश्चन मार्क लगेगा या नहीं लगेगा? Historical approach or contextual approach is putting a question mark on the status of classics, of being a classic itself, isn't it? तो फिर वो क्लासिक्स तो रहा नहीं। ठीक है, तो अब जो स्ट्रॉस हैं, प्रोफेसर साहब कहेंगे कि भैया कोई जरूरत नहीं है इतना लंबा घूम के जाने की। ठीक है, आइए एक काम करते हैं, इसी को जो रिपब्लिक है इसी को पढ़ते हैं अगेन एंड अगेन, रीड इट अगेन एंड अगेन। क्या कहेंगे? रीड इट अगेन एंड अगेन, बार बार पढ़ो उसको, एक ही टेक्स्ट को बार बार पढ़ो। जैसे क्लासिक तो छोड़ो, एनसीईआरटी कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ के आओ, जीएस वाले सर कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ के आने के लिए। आते हो पढ़ के तुम लोग एनसीईआरटी? बोलो। एक बार में समझ में नहीं आता है तो क्या कहते हैं? दोबारा पढ़ो। दोबारा पढ़ते हो? हैव यू सीन द मैजिक ऑफ रीडिंग अ टेक्स्ट अगेन एंड अगेन? व्हाट हैपेंस? सपोज करो तुमने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1857 की क्रांति पढ़ी तुमने पढ़ा, कुछ तुमको समझ में आया, कुछ याद रहा। ठीक है, जब तुमने वही चैप्टर दोबारा पढ़ा तो कुछ नया मिलता है ना? सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू रीड समथिंग अगेन एंड अगेन? यू सी दैट मीनिंग स्टार्ट्स अपीयरिंग, मीनिंग